Question 4.11. In a chamber, a uniform magnetic field of 6.5 Gauss is maintained. An electron is shot into the field with a speed of so much normal to the field. Explain why the path of electron is a circle and determine radius of that circle. So number one, we have to explain why its path should be a circle. If there is a magnetic field in a particular direction, this, and an electron enters in it. Electron is a charged particle, it will experience a force. The same thing we write here. See here, an electron is moving in this direction. Electron is a negatively charged particle. So when it is moving in this direction, we can take as direction of current in the reverse direction. Now, there is a magnetic field which is going inside, and this is direction of the positive charge. Here it is negative, so we make it reverse. So this is the direction of force. So the force act here. This is direction of B, which is going inside. This is direction of V. Now you see V is here and B is here. They are normal to each other. And let's experience a force which is normal to the plane containing these two. ये दो पर perpendicular, ये होगा ये. तो अगर ये x है, ये y है, तो ये z है, ये फोर्स है, और ये फोर्स इसको ऐसे बेंड कर देगा. जब ये ऐसे टर्न हो जाएगा तो इसका नॉर्मल भी फोर्स की डायरेक्शन भी टर्न हो जाएगी, और ये फोर्स फिर से इसको टर्न कर देगा, ये इसको फिर टर्न कर देगा. सो फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, सो इट विल कीप ऑन टर्निंग, और अल्टीमेटली ये एक सर्कल बन जाएगा. So this is what we have explained here. That was the first part of the question. Electron is a charged particle. It experiences a force acting in a direction which is normal to plane containing magnetic field and velocity v. Since it is normal to velocity, it cannot increase or decrease velocity. Velocity में स्पीड में कोई चेंज नहीं आता, वो हर जगह v ही रहती है. स्पीड, it is changing direction, but it can change direction. It acts as centripetal force and path of electron becomes a circle. Whenever there is a force always at right angle to velocity, then the particle will turn and will become a circle, natural. So that is why it is a circular path. अब इसी का जो second part है, we have to find out radius of this circle. तो radius of this circle, to find it out, centripetal force जो इस पर काम कर रहा है उसकी quantity हमको पता है. We know centripetal force quantity, and that centripetal force is equal to QVB. Q is charge on the electron, V is velocity of the electron, and B is the magnetic field strength. This is basically QVB. QV cross B, or QV cross B is equal to
QVB sine theta, where theta is angle between V and B. In this particular case, theta is equal to 90 degree. तो ये इसका सेंट्रीपिटल फोर्स है. अगर ये इसका सेंट्रीपिटल फोर्स है तो इसका वेलोसिटी और रेडियस से क्या रिलेशन है? तो आंसर है सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग जानते हैं वो कितना होता है, mv स्क्वायर अपॉन r. दिस इज इक्वल टू चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन E, वेलोसिटी v, b एंड साइन 90 विच विल बी 1. तो अगले स्टेप में ये खत्म हो जाएगा. सो दिस इज EVB एंड दिस 1v is cancelled. Now we have E here, R here. We want to find out value of R. R को इधर ले जाइए और ये दोनों को इधर ले आइए. So what we get here is R is equal to mv upon E into B. और ये सभी क्वांटिटीज हम क्वेश्चन से लिख देंगे. ओके Mass of the electron, that is 9.1 into 10 to the power minus 31. ये क्वेश्चन में गिवन है, अदरवाइज आपको याद भी रहना चाहिए. into 4.8 into 10 to the power 6. This is velocity divided by electric charge. We know it is 1.6 into 10 to the power minus 19 and multiplied by B. Magnetic field is given 6.5 into 10 to the power minus 4. ये क्यों चेंज हो गया? Because we have taken it in Tesla and it was given in Gauss. Okay, so this is now all in SI system. Now, okay, 10 to the power minus 4 करने से टेस्ला हो जाएगा. That's right. अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं and it comes to be 4.2 into 10 to the power minus 2. SI सिस्टम में रेडियस मीटर. Okay, if you want to make it simple, 10 to the power minus 2 को eliminate कर दीजिए and convert it into centimeter. So this is 4.2 centimeter. This is radius of the electron in that field. ये एक आंसर हो गया. Okay, so in the first part we have given why there should be a circular path, because the force was normal to velocity, and in the second we have given what should be the radius of it. And now we go to the next question. Question number 412. This is related to previous question 411. It says find frequency of revolution of electron. फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? तो याद रखिए, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जब रिवॉल्व करता है, जिसमें हमने साइक्लोट्रॉन भी स्टडी किया है, हर तरह की कैलकुलेशन के लिए जो हमारा स्टार्टिंग फार्मूला है वो एक ही है, उसको याद रखिए. दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज QVB. ये आपको याद रखना है. सो सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि कितना होता है, mv स्क्वायर अपॉन r. ये लेकिन इस पर्टिकुलर केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स है QVB मैग्नेटिक फील्ड में. सो दिस इज E. Q इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक चार्ज हमने लिखा E. V वेलोसिटी, B मैग्नेटिक फील्ड, और साइन थीटा दैट इज साइन 90. यहाँ पर भी वी न्यू दिस. ओके, अब इससे हम बनाते हैं, एक V कैंसल हो गया, साइन 91 हो गया. अब ये जो V है वेलोसिटी, याद रखिए अगर हमको टाइम चाहिए या फ्रीक्वेंसी चाहिए तो हमें ओमेगा चाहिए, ओमेगा रोटेशनल मोशन में. तो ओमेगा किससे आएगा? V इज इक्वल टू आर ओमेगा. तो यहाँ पर हम लेकर आते हैं V इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर ओमेगा अपॉन R इज इक्वल टू EB.
नाउ इन दिस ओमेगा इज इक्वल टू, अगर हमें टाइम चाहिए तो इसे 2 पाई अपॉन टी लिखेंगे, और अगर फ्रीक्वेंसी चाहिए तो 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। यहाँ पर चूंकि फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, सो वी विल राइट इट फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज m इंटू 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू ई बी, और इससे हमको क्या मिला, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन चार्ज मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 2 पाई। इलेक्ट्रॉन चार्ज आप सबको पता है, बी पिछले क्वेश्चन में दिया गया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमको पता है, और 2 पाई की वैल्यू भी पता है। ये सब रख देंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 18 इंटू 10 टू द पावर 6, दैट इज 18 मेगा हर्ट्ज। ये इसको हमने राउंड अप कर दिया अप टू 2 फिगर्स। सो दिस इज व्हाट वी गेट हियर। वैल्यूज पुट की, और वैल्यूज पुट करके ये आ गया 18 इंटू 10 टू द पावर 6 अप्रॉक्सीमेटली, राउंडिंग करके, दैट इज 18 मेगाहर्ट्ज। सो दिस इज हाउ वी फाइंड द फ्रीक्वेंसी। इज देयर एनीथिंग एल्स? डज द आंसर डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन? अब यहाँ पर जो न्यू की वैल्यू है, न्यू की वैल्यू में आप देख रहे हैं ई बी एम, ये 3 स्पेसिफिकेशन है, लेकिन इसमें वेलोसिटी नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी, इट डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड ओनली। सो फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स on B only। E अपॉन M ये तो कांस्टेंट होगा, जब ये वहाँ मूव करता है तो E और M में कोई चेंज नहीं आता। चेंज सिर्फ किस में हम ला सकते हैं, B में। तो फ्रीक्वेंसी टोटली किस पर डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करती है। सो फ्रीक्वेंसी डू नॉट डिपेंड अपॉन velocity. So this is our question number 12, and now we go to question number 13. See question number 13 here. क्या find out करना है? It is given here. Calculate the magnitude of counter torque that must be applied to prevent the coil from turning। एक कॉइल को टर्न करने से प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए कितना टॉर्क लगेगा? तो आंसर है जितना टॉर्क इसने पैदा किया उतना ही टॉर्क हमको लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मच टॉर्क इज क्रिएटेड। तो हमें अब ये याद आना चाहिए कि जब मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई किसी कॉइल में करंट फ्लो होता है तो कितना टॉर्क बनता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो उसका फॉर्मूला हमें कंसेप्ट से याद है, द टॉर्क इज इक्वल टू आई बी ए दिस, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो एन आई बी है। ओके, अगर हम b क्रॉस a इस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड बनाएंगे, then it is NIBA sin theta, where theta is angle between magnetic field and area vector। ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें से आप देखिए ये चीज़ें हमको दी हैं, and we will simply put the values over here। So number of turns given are 30, current flowing is 6, magnetic field is 1, ओके, एरिया पॉइंट रेडियस 8 सेंटीमीटर, उससे ना हमने एरिया निकाल लिया पाई आर स्क्वायर करके। ये पाई आर स्क्वायर
ये क्या निकल गया, एरिया, एंड देन इट इज साइन 60 डिग्री, दैट इज गिवन। ओके, तो ये टॉर्क की वैल्यू आ गई। नाउ वी कैन वेरी वेल कैलकुलेट इट, और इस सब की वैल्यूज रखी, कैलकुलेट की, इट कम्स टू बी 3.133 न्यूटन मीटर। एसआई सिस्टम में टॉर्क का यूनिट न्यूटन इंटू मीटर। ओके, सो दिस इज टॉर्क। तो इसमें हमें एक्चुअली हमारा टेस्ट क्या था कि जब एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, उसमें करंट फ्लो होती है, तो उसमें कितना टॉर्क काम करता है, इसका फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए। तो आप ये देख रहे हैं जितने न्यूमेरिकल अभी हम बना रहे हैं, सब में हमारा टेस्ट यही है कि गिवन क्वांटिटी का फॉर्मूला हमें याद है या नहीं है। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सभी फॉर्मूलाज हमको याद रहे। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। Question number 14. Please see here. There are two concentric coils. Single center, two coils. Both are in the plane north-south. ये north है, ये south है। अगर ये north और ये south है तो ये east है और ये west है। X में current flow हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, इसमें current flow हो रही है क्लॉकवाइज। ये इस प्लेन में है, ये भी इस प्लेन में है। ओके, एक्स की स्पेसिफिकेशन हमको यहाँ से मिलती है, वाई की स्पेसिफिकेशन भी यहाँ से मिलती है। दोनों में करंट फ्लो हो रही है, तो दोनों अपने सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। दैट मीन्स इस पॉइंट पर इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है और इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है। दो मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे और हमको दोनों का रिजल्टेंट निकाल कर बताना है। तो आप डाटा देख रहे हैं, x का हमको दिया है रेडियस, दैट इज 16 सेंटीमीटर, और नंबर ऑफ टर्न्स दी है 20, और करंट 16 एम्पियर। y के लिए रेडियस इज गिवन टू अस एज 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स इसमें हमें x और y उल्टे लेने हैं। x इसका नाम है 16 सेंटीमीटर और y इसका नाम है जो कि 10 सेंटीमीटर है। ओके, x में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है और y में क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है। ओके, N2 देखिए, नंबर ऑफ टर्न्स 25, और I2 इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, दैट करंट इज 18 एम्पियर। अब हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। फिर से वही बात, नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कॉइल, क्या इसका फॉर्मूला हमें याद है? तो आंसर है यस। B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R, वेरी सिंपल। और अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आर मोर देन 1 तो इसमें n और लग जाएगा, म्यू नॉट NI अपॉन 2R। सो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, B ड्यू टू x इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू, n की वैल्यू, I की वैल्यू, (16 सेंटीमीटर). ओके, इसे अब आप सॉल्व कर सकते हैं।
इसके सेंटर पे अब हमको इनकी डायरेक्शन देखनी है। तो पहले जो x से बना 4 पाई x, तो ये रूल भी हमको याद आना चाहिए, राइट हैंड कर्ल रूल। ये हमने बनाया इलेक्ट्रिक करंट और ये है मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आया। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने यहाँ पर ये साइन बनाया। ओके, इसको देखिए, इसमें करंट ऐसी फ्लो हो रही है y में करंट ऐसी फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आया। अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो आउटसाइड डायरेक्शन कौन सी हो गई? ईस्ट। और इनसाइड डायरेक्शन कौन सी है? वेस्ट। सो दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। अब हम ये देख रहे हैं वेस्ट इज स्ट्रॉन्गर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 9 पाई माइनस 4 पाई, दैट इज 5 पाई इंटू 10 to the power minus 4 टेस्ला टुवर्ड्स वेस्ट। ये हमारा आंसर है। So this is how we solve it. This is question number 14. Please correct it. X and Y, two concentric coils. And now we go to the next question, 415. See the question number 15. It says a magnetic field of 100 Gauss is required, which is uniform in the linear dimension of about 10 centimeter and area of cross section 10 to the power minus 3 meter square. The maximum current carrying capacity of the coil, maximum current carrying capacity is 15 ampere. Number of turns per unit length can be wound maximum 1000 turns per meter. Suggest some appropriate design particular of a solenoid for this required purpose. Assume the core is not ferromagnetic. अब ये B का फॉर्मूला हमको पता है फॉर सोलेनॉइड। इनका ये कहना है कि हम इतना B बनाना चाहते हैं, 100 गॉस, दैट इज 10 to the power minus 2 टेस्ला, इतना हम बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने वेरिएबल डिज़ाइन करने, तो हम पहले ये देखते हैं इसमें कांस्टेंट्स कौन है, फिर वेरिएबल डिसाइड करेंगे। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमें सोलेनॉइड का पता है, इसमें म्यू नॉट कांस्टेंट है और मैग्नेटिक फील्ड हमने एक फिक्स वैल्यू का बनाना है, इसलिए ये भी कांस्टेंट है। तो हमें ये जो B और म्यू नॉट, ये अगर दोनों कांस्टेंट है तो हम N और I इनमें ही चेंजेस ला सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलता है B अपॉन म्यू नॉट, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? N मल्टीप्लाइड बाई I के बराबर। तो N मल्टीप्लाइड बाई I जिसमें हमने चेंजेस करने हैं, N और I, इन दोनों की लिमिट हमको पता है, इन दोनों में हम इसके अंदर कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। कितनी वैल्यू रखेंगे? इतनी वैल्यू रखेंगे कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर आ जाए। ये इसमें फिजिक्स है। ओके, तो B की वैल्यू हमने यहाँ से ले ली 10 to the power minus 2 और म्यू नॉट की वैल्यू आप सबको मालूम है 4 पाई इंटू 10 to the power minus 7। ये आ गया B अपॉन, और ये हमें चाहिए N इंटू I। ये ऊपर चला जाएगा, दिस विल बी 10 to the power 5। So 10 into 10 to the power 4, that is 10 to the power 5 upon 4 pi। ये आ गया, this is the value of N into I। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके हमने इसका नंबर निकाला एंड दिस कम्स आउट टू बी नियरली 7957।
approximately 7957 एम्पियर. ओके 7957 ये हमें चाहिए क्या? n मल्टीप्लाइड बाई आई. अब अगर हम ये एम्पियर टर्न्स है ना, ये टर्न्स इनटू एम्पियर, ये अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर है? 8000. तो 8000 टर्न्स एम्पियर हमको चाहिए. अगर हम इसमें 1000 टर्न्स ले ले तो करंट कितनी फ्लो करानी पड़ेगी? 8 एम्पियर. तो हमने पूरी टर्न्स यूज कर ली. अगर हम इसमें 15 एम्पियर फुल करंट फ्लो कराएंगे तो 15 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा. तो हम इसमें कुछ अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं. अगर हम इसमें करंट के लिए 10 एम्पियर कर दे तो नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है? 800 जो इसके अंदर आ जाती है. सो वी कैन सजेस्ट n is equal to number of turns is equal to 800 turns पर मीटर. तो उस समय करंट कितनी फ्लो होगी? अप्रॉक्सीमेटली 10 एम्पियर. और ये दोनों इसके अंदर आते हैं. सो वी सजेस्ट n इंटू आई. आप इसमें थोड़ा सा वेरिएशन करके भी सजेस्ट कर सकते हैं. तो इस तरह का सोलेनॉइड हम बनाएंगे जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स करीब करीब 800 रहेंगे और इसमें करंट 10 एम्पियर बड़े आराम से जाएगी बिकॉज इट कैन टेक अप टू 15 एम्पियर. तो हमको करंट मैक्सिमम वैल्यू की नहीं रखनी चाहिए, अदरवाइज इट विल बिकम वेरी हॉट. उसे थोड़ा कम होना चाहिए. सो दिस इज व्हाट वी सजेस्ट हियर. दिस इज 4.15 एंड नाउ वी गो टू द नेक्स्ट 416. See here question number 16. It says for a circular coil of radius r and n turns. एक circular coil है, इसका रेडियस r है, इसमें n टर्न्स हैं, करंट I फ्लो हो रही है, n टर्न्स हैं. ओके. The magnitude of magnetic field at a point on the axis at a distance x. यहाँ से x डिस्टेंस पर अगर जाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हमको मिलेगा. इसमें ये वाला डिस्टेंस x है, ये रेडियस r है, करंट I फ्लो हो रही है, रेडियस r है और n नंबर ऑफ टर्न्स है. ओके. ये इस पोजीशन के लिए है. अब इनका ये कहना है कि ये फॉर्मूला अगर हम एक कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें तो क्या हमारे पुराने फॉर्मूले से डिफरेंट होगा या उससे मैच करेगा? तो हमारा पुराना फॉर्मूला क्या बताता है कि सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I कितना होता है? म्यू नॉट I अपॉन 2r. और अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है तो इसमें एक n और आ जाएगा, म्यू नॉट ni अपॉन 2r. r इज रेडियस. ये हमारा पुराना फॉर्मूला है. इनका ये कहना है कि इसमें और इसमें ये दोनों सेम है, ये प्रूव करिए. ओके. यहाँ पर हम देख रहे हैं ये x डिस्टेंस है. इस x डिस्टेंस को कम करते जाइए, कम करते करते x इज इक्वल टू 0 कर दीजिए तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? कॉइल के सेंटर में. एट सेंटर ऑफ कॉइल x इज इक्वल टू 0. तो ये क्या हो जाएगा? देयरफॉर b इज इक्वल टू म्यू नॉट I r स्क्वेयर n टू बी डिवाइडेड बाय 2 r स्क्वेयर टू द पावर 3/2. r to the power 2 to the power 3/2. This is r to the power 3. So this is mu naught I n. This is r to the power 2 and this is 2r to the power 3. इनका cancellation करिए. So what do we get here? Mu naught n I. This r is cancelled. Here what we get is r upon 2r.
Now, we get it. So, this is the same formula as this. इसका एक special case ये है. This is the general formula. This is a special case formula where x has become equal to 0 and the point is at the center of the coil. This is how we have done it. अब इसका second part देखिए. The second part says, this is regarding Helmholtz coil. ये इनका रेडियस r है और ये इसका सेंटर है. यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है. ओके, तो हमें इसका फॉर्मूला पता है. इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? B ड्यू टू 1 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हम पहले कर चुके हैं. दिस इज म्यू नॉट I R स्क्वेयर N अपॉन दिस इज 2 x स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर टू द पावर 3/2. दिस, इसमें x कौन है? x इज द डिस्टेंस, दिस वन. और इसके बारे में आपको यहाँ क्या दिया गया है? 2 parallel coaxial circular coils of equal radius r, the number of turns n, okay, separated by a distance r. यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस कितना है? r. Show that the field on the axis around the midpoint, this point, is uniform over a distance that is small as compared to r. Okay. तो एक छोटे से डिस्टेंस के लिए यहाँ पर ये यूनिफॉर्म रहेगा. ठीक है, तो इसको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, उसका एक्सप्रेशन हम बनाएंगे. तो x की वैल्यू हमको कितनी रखनी चाहिए? यहाँ से यहाँ तक अगर r है तो x की वैल्यू r डिवाइडेड बाई 2 होगी. सो दिस इज म्यू नॉट I R स्क्वेयर N अपॉन 2 इंटू R अपॉन 2 होल स्क्वेयर, दैट इज R स्क्वेयर अपॉन 4 प्लस R स्क्वेयर. This whole thing is to the power 3/2. Now this is equal to, अब इसको अगर हम बाहर निकाल लेते हैं, पहले इसको ऐड कर देते हैं. this, so this is 4 and this is 1 plus 4 5 R square 3/2. this is 2 और ऊपर वाला ऐसा ही रहेगा, म्यू नॉट I R स्क्वेयर N. this is equal to म्यू नॉट I R स्क्वेयर N अपॉन, अब 5 अपॉन 4 को बाहर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 5 अपॉन 4 टू द पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय R स्क्वेयर टू द पावर 3/2, दैट इज R टू द पावर 3. सो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट I N upon certain value of this thing into R. ये यहाँ सेंटर पर वैल्यू आई बिकॉज ऑफ दिस कॉइल. फिर इसके कारण भी यहाँ पर सेम वैल्यू आएगी और दोनों को हम ऐड करेंगे, दैट विल बी डबल ऑफ द वैल्यू. वो तो ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पर यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म कब होती है? ये आ गया, दिस इज, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे देन इट इज़ 5 अपॉन 4 टू द पावर 3/2 और 2 से मल्टीप्लाई किया 2. क्यों किया 2 से मल्टीप्लाई? वन मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस, अदर मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस, और दोनों आपस में, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे. बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. ओके, yes, both are in the same direction, they will get added up. तो 2 से मल्टीप्लाई किया, this 2 is cancelled. तो ये तो सेंटर पे आया, लेकिन हमें ये बताना है कि ये यूनिफॉर्म है. तो यूनिफॉर्म बताने के लिए हमको बहुत सी कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी.
I will not do that here. I will simply tell you how to do this. यहाँ से हम एक छोटा सा डिस्टेंस लेते हैं d, this d डिस्टेंस पर ये वाला डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा? दिस इज r/2 माइनस d, और इधर से ये कितना हो जाएगा? r/2 प्लस d। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, दोनों को आपस में ऐड करेंगे। इसी तरह से अगर हम इधर लेते हैं तो भी इतना ही आएगा। उसके बाद हम क्या देखते हैं? दैट d इज ए स्मॉल डिस्टेंस एंड कंपेयर टू r दिस इज नेग्लिजिबल। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं होगी बिकॉज d इज नेग्लिजिबल। जो इसका रिजल्ट आएगा उसमें वो निकलेगा। सो यू कैन डू इट वेरी वेल, इट्स वेरी इजी वन, बट दिस इज व्हाट इट मीन्स एक्चुअली। थैंक यू। सी क्वेश्चन नंबर 17 हियर. It says that there is a toroid and we have to find out magnetic field due to current flowing in the toroid. So in case of toroid, हमारा नॉलेज क्या कहता है? टोरॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होता है और टोरॉइड के अंदर एम्प्टी स्पेस पे भी ज़ीरो होता है। तो इसके दो आंसर तो आपको मिल गए, यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? B। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज इक्वल टू μ0 Ni। ये n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट मीटर, नंबर डेंसिटी। पर हमें टोटल नंबर दिया है, नंबर डेंसिटी नहीं दी। तो हम नंबर डेंसिटी कैसे निकालते हैं? n इज इक्वल टू n टोटल लेंथ। तो यहाँ पर हमें इसकी लेंथ चाहिए, पर यहाँ पर ये लेंथ चाहिए। हमें ये रेडियस दिया है 25 और ये रेडियस दिया है 26, ये रेडियस नहीं दिया। सो वी टेक एवरेज ऑफ द टू, उसे 2 पाई r करके हम ये टोटल लेंथ निकाल लेंगे। सो दिस विल बी n अपॉन 2 पाई r1 r2 का एवरेज ले लेंगे, ये 2 पाई r, ये एवरेज। सो दिस इज वैल्यू ऑफ n। सो दिस इज μ0। μ0 की वैल्यू हमने रखी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। n की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी 3500 टू बी डिवाइडेड बाय 2 पाई r1 r2, 25 प्लस 26, 25 प्लस 26 अपॉन 2 r। दिस इज इन सेंटीमीटर्स, so we convert it into meters। ये 2 पाई r, ये लेंथ है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ। ये n की वैल्यू आ गई। दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ करंट। करंट इज गिवन 11 एम्पियर, सो वी राइट हियर 11। बस, नाउ इट इज मैथमेटिक्स। और इस पूरे को सॉल्व करके आप देखिए, इट कम्स टू बी 3 approximately 3 into 10 to the power -2, and this is magnetic field, so it is Tesla। so तो हमें सिर्फ इसमें क्या याद रखना है कि इसके अंदर भी μ0 Ni ही होता है, पर ये n कैलकुलेट करने के लिए कंफ्यूज नहीं होना है। इन दोनों का एवरेज ले लीजिए, 25 और 26 का। दैट इज द ओनली कैच in this numerical, otherwise it's a very simple one। Thank you। This is a conceptual question. See the first part of it. A magnetic field that varies in magnitude from point to point but has a constant direction, east to west। ये एक magnetic field है east to west, east to west। लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है ये चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर कहीं स्ट्रॉन्ग है, कहीं वीक है, फिर स्ट्रॉन्ग है, फिर वीक है। वट एवर इज द रीजन वी आर नॉट डिस्कसिंग, बट मैग्नेटिक फील्ड इज डिफरेंट।
What is same at all the points? Direction. At every direction it is same, but the magnitudes are somewhere it is like this, somewhere it is like this, somewhere it is like this, and this way and this way. इस तरह से कहीं कम कहीं ज़्यादा इस तरह से बना हुआ है. Similarly it is like this. तो इसमें next, a charged particle enters the chamber and travel undeflected along a straight path with constant speed. इसमें एक चार्ज पार्टिकल गया और बिना मुड़े सीधा चला गया, जबकि मैग्नेटिक फील्ड भी है और उसकी स्ट्रेंथ भी अलग अलग है. फिर वो क्यों नहीं मुड़ा? तो एक आंसर पक्का है कि वो इसलिए नहीं मुड़ा क्योंकि उस पर फोर्स नहीं लगा. इसलिए नहीं मुड़ा क्योंकि उस पर ऐसे जा रहा था इधर या इधर, कोई फोर्स नहीं लगा. अब ये फोर्स कब नहीं लगता है? फोर्स नहीं लगने क्या, तो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है. फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. ये फोर्स जीरो कब हो सकता है? अब वहाँ पर उसके पास वेलोसिटी भी है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी है बी, और क्यू उसके पास चार्ज भी है. तो फिर फोर्स जीरो क्यों होगा? साइन थीटा जीरो होना चाहिए. और साइन थीटा जीरो कब होता है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो और 180 डिग्री. दैट मीन्स ये हमारा फर्स्ट आंसर है कि अगर चार्ज ऐसे मूव कर रहा है या ऐसे मूव कर रहा है, इन बोथ द केसेस इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स एंड इट विल नॉट बी डिफ्लेक्टेड. फुल फोर्स के लिए क्या कंडीशन है? दे शुड बी एट राइट एंगल टू ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी. और जैसे जैसे ये एंगल कम होता जाएगा फोर्स कम होते जाएगा, एंड नाउ द फोर्स इज जीरो. दैट इज द केस हियर. अब इसी का सेकेंड पार्ट देखिए. द सेकेंड पार्ट सेज a charge enters an environment of a strong and non-uniform magnetic field varying from point to point both in magnitude and direction and comes out of it following a complicated trajectory. एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन भी लगातार चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड भी लगातार चेंज हो रहा है. ये इस तरह का एक चार्ज पार्टिकल इसमें किसी भी डायरेक्शन में ऐसे एंटर करता है, इसकी वेलोसिटी v है. तो ये जब जाता है तो कभी ये ऐसे टर्न हो जाता है, कभी ऐसे टर्न हो जाता है, कभी ऐसे टर्न होता है, और फाइनली ये ऐसा निकल गया. यहाँ पर इसकी स्पीड v1 थी और यहाँ पर इसकी स्पीड v2 है. सो हमारा क्वेश्चन है, इज देयर एनी चेंज इन वेलोसिटी, इज देयर एनी चेंज इन दी स्पीड? डायरेक्शन बदल गई तो वेलोसिटी तो बदली, बट इज देयर एनी चेंज इन द स्पीड? दैट इज व्हाट इज आस्क्ड. ये कॉम्प्लिकेटेड ट्रेजेक्ट्री में गया, कभी किधर फाइनल. तो आंसर है मैग्नेटिक फील्ड में जब भी फोर्स लगेगा दैट विल बी एट राइट एंगल टू द स्पीड एंड इट कैन नॉट चेंज द स्पीड. ये हम लोग पहले कर चुके हैं. तो जितनी बार भी टर्न होगा हमेशा डायरेक्शन बदलेगा, स्पीड कभी नहीं बदलेगा. तो हमारा आंसर है स्पीड विल रिमेन सेम. तो ये दो चीज़ें ये हमने इसमें 18 में की. एंड नाउ वी गो टू द क्वेश्चन नंबर 19. थैंक यू.